everybody and first of all we wish you happy mathematics day। and जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस डे को this day is really known after the great mathematician the great श्रीनिवास रामानुजन। और जैसा कि मैं जानता हूँ ऑलरेडी कि मेरी सिस्टर मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो एंड उनकी रोल मॉडल भी श्रीनिवास रामानुजन है। तो मैं आज उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अबाउट श्रीनिवास रामानुजन टू नो इवन मोर अबाउट हिम। एंड सो पहले तो मैं अपनी सिस्टर को अपॉर्चुनिटी दूंगा टू जस्ट इंट्रोड्यूस श्रीनिवास रामानुजन। Hello everyone. First of all, I would like to wish to everyone happy National Mathematics Day. And first of all, I would like to introduce myself. My name is Kashish Khan and I am sister of Mr. Sharim Khan. So today is a great day. As you know, today we are celebrating National Mathematics Day. But why? What is the reason behind that? Like whenever we talk about mathematics, so on our tongue many names come, and among them there is a great person who is known as Srinivasa Ramanujan. For what today we are celebrating this National Mathematics Day. Like Srinivasa Ramanujan Iyengar, his full name was. So means what made him that today we are celebrating his birthday. Like so many persons are in this world, means many person die, but still we don't remember him. But today means so great he is that we are celebrating his birth anniversary. Not only like this by his name, that today is National Mathematics Day. So his achievements, what he did, we know that he lived only 32 years. Like he didn't live a long life, but he lived a big life. He was born in Erode on 22nd of December 1887. His family condition was not good. His father was a clerk in a shari shop, and mother was also, means she would sing bhajan in temple. And like his father didn't give much time to children, like how nowadays parents are giving too much time. They are focusing on their future goal, but that time that was very early means time. I think it was late 19th century, and that time India was a part of British Empire. And interestingly, I think our first Prime Minister of India, P.T. Nehru, was also born in same century, in 19th century. So when Ramanujan was born, I think he had means there were 6 children in his home. So their family condition was also not good. So, and since starting, as we know now that children, their future decide from their childhood, what they are doing according to their activities. तो रामानुजन जब छोटे थे तभी से सब लोग उनको जानते थे he is very fully different, but they didn't know that so different he will be. Like today still will remember. I think 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, but still we remember. जब वो छोटे थे तो उनका काम क्या था एक्चुअली, हम लोग स्टूडेंट एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, एंड वी प्ले, वी एंजॉय विद फैमिली ऑल एंड ऑल। बट उनका जो काम था, उनकी सिर्फ 3 एक्टिविटीज़ थी। एक तो वो स्कूल जाते थे ना फोर्सली। एक्चुअली एक चीज़ कॉमन है सारे ग्रेट इंसान में, मतलब जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, किसी को स्कूल जाना पसंद नहीं था। इवन माई ब्रदर, ही ऑल्सो डोंट लाइक टू गो टू स्कूल। उनको भी नहीं पसंद है स्कूल जाना। वाई? क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस ऐसे होते थे ना, जो टीचर को पूरा घुमा देते। लाइक हिज क्वेश्चंस वर लाइक हु इज़ द फर्स्ट मैन ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द क्लाउड्स फ्रॉम अर्थ। अब ऐसे क्वेश्चन एक स्कूल में टीचर कैसे रिप्लाई करेंगे? यही चीज़ टीचर को पसंद नहीं आती थी, और वहाँ के जो बच्चे होते थे दे वुड लॉफ। वो लोग रामानुजन का मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा क्वेश्चंस कर रहा है। स्टिल दैट्स वाई ही डिडंट लाइक टू गो टू स्कूल। फिर वो घर पे आते थे, एंड अभी भी उनके घर पे एक विंडो था। अभी भी वो विंडो है, और वहाँ पे एक कॉट हुआ करती थी। वहाँ पे वो बैठ के, एक उनके पास छोटी सी स्लेट थी, उसी पे बस दिन भर मैथमेटिक्स, नंबर्स, वो उनको नंबर से इतना प्यार था कि वो दिन भर नंबर्स, थ्योरम से ही सब लिखा करते थे। उस टाइम मतलब जब वो विंडो के पास बैठे रहते थे, उनके स्कूल फ्रेंड सब लोग वहाँ पे, बच्चे, बूढ़े लोग, जितने भी लोग थे, सब लोग अपना काम करते थे, बच्चे खेलते थे, बहुत सारी नॉइज होते, बट स्टिल उनकी जो लगन थी, वो जो जैसे बैठ के वो मैथमेटिक्स करते थे, ऐसा लगता है आज जैसे बच्चे यूपीएससी, जेई, नीट के लिए प्रिपरेशन करते हैं, सब कुछ अपना छोड़ के एक फोकस, उनका टारगेट रहता है कि हमें ये क्वालिफाई करना एग्ज़ाम। उनके पास कोई गोल ही नहीं था कि मेरे को ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, यूपीएससी, नीट, जेई, क्योंकि उस टाइम ये सब हुआ भी नहीं करते थे। बट उनको क्या था, उनका जो प्यार था, वो ज़बरदस्ती कोई कंपटीशन के लिए नहीं प्रिपरेशन कर रहे थे। उनको इंटरेस्ट था मैथ्स में कि मुझे करना है।
उनके पास कोई गोल नहीं था कि मेरे को ये करना है, मेरे को कैम्ब्रिज जाना है। उन्हें क्या पता था कि कैम्ब्रिज के लिए उन्हें ऑफर आएगा, उनको क्या पता था कि कैम्ब्रिज को मजबूर होना पड़ेगा कि रामानुजन यहाँ पे आए। हम लोग रामानुजन के माइंड को पढ़ना चाहते हैं कि वो कितना ब्रॉड है। यही एक्टिविटी थी, उनके पास स्लेट था, तो उनके पास एक बुक भी थी, एक नोटबुक, जो वो छुपा के रखा करते थे, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है कि मजाक उड़ाते थे कि ये तुम क्या करते रहते हो दिन भर। जब बच्चे मजाक उड़ाते थे तो फिर वो टेम्पल के पास जाके चुपचाप बैठे रहते थे। वहाँ पे टेम्पल के जो फर्श होता है उस पे चौक से लिखा करते थे मैथ्स को। और एक बार क्या होता है कि जी.एच. हार्डी उनसे पूछते हैं कि रामानुजन, तुम मतलब आप बताओ कि कैसे इतना सब कुछ मैथ्स के बारे में जानते हो, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है, तो कैसे? तो रामानुजन कहते हैं कि गॉड आते हैं मेरे सपने में और इक्वेशंस लिख के चले जाते हैं। आई लाइक टू टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जैसे 2n-1 ये हम लोगों के लिए ना बहुत एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है, बट रामानुजन क्या कहते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम लोग n=0 लिखते हैं ना तो हम लोग को क्या मिलता है, दैट इज 0, मतलब शून्य, नथिंग। लेकिन जब हम लोग n=1 लिखते हैं ना तो हम लोगों को मिलता है 1 मतलब गॉड यूनिटी ऑफ हिमसेल्फ। मतलब कितना अमेजिंग। जब हम लोग लिखते हैं n=2 तो हम लोगों को मिलता है 3 मतलब 3 मूर्तिज, द हिंदू गॉड, आई थिंक ब्रह्मा, विष्णु एंड वन मोर, आई डोंट रिमेम्बर। जब हम लोग n=3 लिखते हैं तो हम लोग को मिलता है 7 ऋषिज, 7 सेजेस ऑफ हिंदू। तो रामानुजन को हर एक इक्वेशन, हर एक नंबर बहुत ऑर्डिनरी वो नहीं लेते, सबको एक मतलब इंटरेस्टिंग। और जो नंबर लाइक 1, 2 सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, 3 स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, 4, सारे नंबर्स को देखे ना, ये सब एक डिफरेंट नंबर है, सब इंटरेस्टिंग नंबर है। और वो नंबर जो इंटरेस्टिंग नहीं है, ये भी तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये नंबर इंटरेस्टिंग नहीं है। तो रामानुजन वाज मीन्स वेरी अमेजिंग पर्सनैलिटी। Okay, so that was just to introduce Srinivasa Ramanujan Iyengar. अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट वाज कि जैसे जी.एच. हार्डी ने कैम्ब्रिज से रामानुजन को ऑफर दिया था, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दैट फैक्ट कि क्या रामानुजन ने ऐसा कौन सी अचीवमेंट या ऐसा कौन सा काम किया कि इवन कैम्ब्रिज से उन्हें ऑफर मिला वहाँ कैम्ब्रिज जाने को। लाइक रामानुजन, जी.एच. हार्डी रामानुजन को नहीं जानते थे एंड रामानुजन भी जी.एच. हार्डी को उतना अच्छे से नहीं जानते थे। बट जब रामानुजन एज अ क्लर्क पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे थे तो उनके जो एक एम्प्लॉय रहते हैं उस पोस्ट ऑफिस में, वो बोलते हैं रामानुजन अप टू व्हेन, कब तक तुम ऐसे फॉर्मूलाज लिखते रहोगे, कब तक ये दुनिया को तुम बताओगे नहीं, कोई तुम्हारा टैलेंट नहीं देखेगा। तो रामानुजन बोलते हैं मेरे पास मतलब मेरे को खाने के लिए पैसे नहीं है और मैं कैसे दुनिया को अपना टैलेंट दिखाऊं, मतलब उसके लिए भी तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो बोलते हैं कि तुम्हें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक लेटर चाहिए, एक लेटर सेंड करो। तो वो समझ नहीं पाते हैं क्या मैं करूं। तो एम्प्लॉय बोलते हैं कि तुम एक लेटर लिखो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किसी प्रोफेसर लेक्चरर को। तो एक्चुअली उस टाइम जी.एच. हार्डी बहुत फेमस रहते हैं बिकॉज जी.एच. हार्डी इज़ वेरी काइंड पर्सन। वो बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को, मतलब उनका कोई एक ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो फेल हुआ हो अपने रिसर्च में, वो अपने काइंडनेस के लिए बहुत फेमस थे। तो वो बोलते हैं कि जी.एच. हार्डी को लिखो। तो जनवरी की एंड चलती रहती है तो रामानुजन बोलते हैं ठीक है मैं लेटर लिखूंगा। रामानुजन लेटर लिखते हैं, लेटर पहुंचता है कैम्ब्रिज। एक्चुअली उस दिन जी.एच. हार्डी जब उनका डेली एक्टिविटी रहता है कि वो आते हैं, उनको क्रिकेट से बहुत लगाव रहता है, वो क्रिकेट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उस दिन क्या होता है ना, अनफॉर्चुनेटली मतलब ज़्यादा लेटर्स नहीं रहते, तो उसमें से एक लेटर बहुत ऑकवर्ड टाइप का रहता है, मतलब एक्चुअली इंडिया से रहता है, उसके जो स्टैम्प रहते हैं वो बहुत डिस्कलर रहता है, तो उनको वो जो बहुत स्ट्रेंज लगता है। एंड देन ही पिक्ड अप दैट लेटर। वो लेटर खोलते हैं, उसमें पढ़ते हैं रामानुजन के बारे में। रामानुजन खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैं एक क्लर्क हूँ एक पोस्ट ऑफिस में जिसके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, जो 20 रुपये पर मंथ अर्न करता है। और उसमें 9 पेजेस रहते हैं जिसमें थ्योरम्स, ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरम्स, फॉर्मूलाज लिखे रहते हैं। जब जी.एच. हार्डी वो थ्योरम्स देखते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं, कुछ तो उसमें इनकरेक्ट रहते हैं, कुछ पहले डिस्कवर हो गए रहते, लेकिन कुछ जी.एच. हार्डी का जो माइंड है तो पूरा हिल जाता है। हाउ, मतलब एक इंसान जिसके पास कोई भी डिग्री नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, वो ऐसे थ्योरम्स कैसे लिख सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल जोक है या फिर ये फ्रॉड है? जी.एच. हार्डी कुछ टाइम के लिए उस
लेटर को इग्नोर कर देते हैं। फिर वो एक्चुअली उस टाइम एक फंक्शन चलते रहता है कैम्ब्रिज में, एक आई थिंक न्यूटन के बुक का न्यू एडिशन लिखा गया होता है, तो वही फंक्शन चलता है। बट स्टिल जीएच हार्डी एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन रहते हैं और वो मैथमेटिक्स के टैलेंट को समझते हैं, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बार बार उनके दिमाग में वही लेटर वाली बात चलती रहती है। तो उस टाइम वो ना लिटिल वुड, वो भी एक ग्रेट मैथमेटिशियन, उनके साथ कोलैब किए रहते हैं। तो लिटिल वुड को बुलाते हैं एंड बोलते हैं कि मैं अभी बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ, आई नीड योर हेल्प। तो लिटिल वुड बोलते हैं ओके सर टेल, क्या बात है आप बताइए। तो बोलते हैं आप आइए मेरे रूम में एंड देन आई हैव टू डिस्कस समथिंग टू यू। तो लिटिल वुड उतने हरी में नहीं रहते हैं, बट जीएच हार्डी बहुत हरी में रहते, तो वो चाहते हैं जल्दी से मैं वो थ्योरम्स को समझ जाऊँ, जल्दी से मैं वो बंदे को समझ जाऊँ जो वो लिखा है। तो फिर लिटिल वुड आते हैं रूम में, वो लेटर देखते हैं, वो थ्योरम्स पढ़ते हैं। जब धीरे धीरे जीएच हार्डी लेटर को ध्यान से पढ़ते हैं, थ्योरम्स को ध्यान से देखते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, ये लिखने वाला कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है, भले से उसके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन ये जिसने भी लिखा है वो एक आम इंसान तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो तुरंत डिसाइड करते हैं कि रामानुजन को यहाँ बुलाया जाए। रामानुजन, फिर वो लेटर लिखते हैं रामानुजन को एंड देन रामानुजन को। सो दैट्स द स्टोरी कि कैसे श्रीनिवास रामानुजन इवन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज पहुंचे। एंड आफ्टर दैट आई रियली क्वेश्चन यू अबाउट, फिर जब वो कैम्ब्रिज पहुंचे, अबाउट हिज डिजीजेस, अबाउट हिज हेल्थ, कि कैसे उनकी हेल्थ सडनली डैमेज होने लगी। फिर जब लेटर पहुंचता है रामानुजन को, तो रामानुजन, अब लेटर उनको पहुंच गया है, अब सब कुछ क्लियर, उनको अपना फ्यूचर दिख रहा है सबको। मतलब ये बात एक वाइल्ड फायर के जैसे पूरे कैम्ब्रिज इंडिया में फैल गई थी कि कैम्ब्रिज से एक लेटर आया रामानुजन के लिए। लेकिन स्टिल वो जो टाइम था वो आज के जैसे वो टाइम नहीं था, दैट वाज अर्ली सेंचुरी। उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ा एंड दैट वाज लाइक रिलीजियस टाइप। मतलब रामानुजन एक ब्राह्मण फैमिली से थे, हाँ फुल्ली, तो उनको उनके बड़े बड़े बाल थे, उनको वो कट करवाना पड़ा, उनको सी क्रॉस करना पड़ता, लेकिन वो टैलेंटेड थे। उनकी जो मम्मी थी वो बोले कि मैं जानती हूँ हम लोग फुल्ली ब्राह्मण फैमिली से, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो वो समझती है रामानुजन के टैलेंट को, रामानुजन खुद जाना चाहते हैं एंड बहुत सारे लोग उनको बोलते हैं रामानुजन यू शुड गो। रामानुजन की वाइफ भी उनको सपोर्ट करती है। फिर वो कैम्ब्रिज के लिए निकल जाते हैं। कैम्ब्रिज वो जब पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे भी उनको बहुत सारे चैलेंज, मतलब उनको इकोनॉमिक तो कोई टेंशन नहीं थी, उनको सिर्फ फोकस करना था मैथ्स पे। लेकिन वो एक इंडियन थे, तो उनको जो फूड में वहाँ का एनवायरनमेंट वो खुद से मतलब एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। लाइक उनको इंग्लिश सूट पहनना पड़ता था और वो स्टार्टिंग से ही धोती में रहते थे, तो उनको एक चैलेंज फेस करना पड़ा। उनको शूज़ पहनना बिल्कुल पसंद नहीं था, मतलब वो कभी शूज़ पहने नहीं थे, तो उनको शूज़ पहनना पड़ता था। एक बार तो वो स्लीपर पहन के चले गए थे कैम्ब्रिज में। सो जीएच हार्डी वॉज फुल्ली अमेज्ड दैट हाउ मीन्स ही इज़ इन कैम्ब्रिज एंड ही इज़ वेयरिंग अ स्लीपर। सो जीएच हार्डी अपना शूज़ देते हैं, उनको बोलते हैं नो यू शुड बी फुल्ली लाइक अ प्रोफेसर, यू शुड लिव हियर लाइक दैट। तो रामानुजन ये सब चीज़ से तो वो बहुत फेस करे। फिर फूड की प्रॉब्लम आई उनको। एक्चुअली वो तो स्टार्टिंग से ही मतलब मैथ्स में इतना इंटरेस्टेड थे कि दिन भर मैथ्स किया करते थे। वहाँ पे उनको डिग्री भी मिल जाती है, बीएससी वो करते हैं कैम्ब्रिज से, लेकिन फूड में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो दिन भर मैथ्स करते रहते हैं और वहाँ पे जो वेजिटेबल, एक्चुअली वो तमिल फैमिली से थे, तो वो रासम एंड राइस, आई डोंट नो व्हाट दे ईट ऑन लीफ ऑफ बनाना ट्री। सो उस पे खाना खाते हैं और वहाँ पे उनको प्लेट में नाइफ से, फॉर्क से खाना खाना पड़ता है एंड द स्मेल ऑफ चिकन ऑल दिस ही कुडंट बियर दैट। तो वो खाना बहुत कम ही खाया करते थे, पोटैटोज़ को बॉईल करके खाया करते थे और वो इंडिया से मतलब वेजिटेबल्स मंगाया करते थे। दीज मीन्स इफेक्टेड टू रामानुजन हेल्थ अ लॉट। Okay. And another interesting fact is about the number 1729, which is also called the Hardy Ramanujan number and also known as the taxi cab number. So, what was the story behind 1729? Yeah, this is very interesting fact. Actually, G.H. Hardy, who was very close friend of Ramanujan, G.H. Hardy बताते हैं कि वो एक बार
जा रहे थे रामानुजन से मिलने हॉस्पिटल। तो जीएच हार्डी की एक हैबिट थी कि वो हमेशा जो भी नंबर्स को देखते थे उसको समझने की कोशिश करते थे कि टैक्सी कैब पे जितने भी नंबर्स लिखा हुआ करते थे वो मतलब उसको पढ़ते थे, उसको समझते थे। तो वो एक टैक्सी कैब में बैठते हैं और उसका जो नंबर आता है दैट वाज 1729। तो वो जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं देन ही वाज लाइक दैट रामानुजन टुडे आई सा नंबर दैट वाज 1729, what do you think about it? It is so dull number. Then said no sir, this is not dull. ये डल नंबर नहीं है एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। तो बोलते हैं कैसे? तो बोलते हैं कि सर ये एक ऐसा नंबर है, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज द सम ऑफ टू क्यूब्स ऑफ नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड इन टू डिफरेंट वेज। तो जीएच हार्डी अगर वो नंबर मतलब देखते नहीं और रामानुजन से बोलते नहीं तो एक और टैलेंट रामानुजन का नहीं देख पाते। मतलब रामानुजन जो भी चीज़, जो भी नंबर से इतना लगाव थे, उनको इतना ज़्यादा प्यार था नंबर से कि वो सारे नंबर को एकदम डिफरेंट फॉर्म में बता देते थे। और अब तक ऐसे नंबर सिर्फ 6 ही हम लोग को मिले हैं एंड होप आवर मैथमेटिशियन विल फाइंड मोर एंड मोर because Ramanujan is not with us, so I think if he would be so he could find more and more, but unfortunately he is not with us. Okay, and the next question I'll ask कि फिर उनकी सिंस इलनेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई, सो व्हाट अबाउट हिज रिटर्न टू इंडिया? बाद में जब वो इंडिया में आए, सो थिंग्स लाइक दैट, व्हाट केसेस रियली हैपेंड दोस टाइम? रामानुजन कैम्ब्रिज में रहते हैं तो फिर एक्चुअली जब उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है तो जीएच हार्डी तो नहीं चाहते हैं कि वो इंडिया बैक जाए, क्योंकि मैथ्स को उनकी ज़रूरत थी। मैथ्स, बिकॉज आई थिंक मैथ्स वाज फॉर्चुनेट दैट रामानुजन वाज सेव्ड, क्योंकि रामानुजन वहाँ पे मतलब कुछ साल तो सिर्फ उनको प्रैक्टिस ही करना पड़ता है खुद को प्रूफ करने में। मतलब सिर्फ जीएच हार्डी वहाँ पे उनके टैलेंट को समझते हैं, बट और भी प्रोफेसर्स थे जिनके सामने उनको प्रूफ करना पड़ता, और उन्होंने जितने भी थ्योरम्स लिखे थे उन सबको उन्हें प्रूफ करना था, तो ज़्यादा टाइम इसी में लग गया। और जब एक्चुअल में जब उनको एक वे मिलने लगी उनके सक्सेस की तरफ और उनको जब एफआरएस में मेंबर बना दिया गया, तभी उनकी तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा। तो क्या होता है कि और रामानुजन एक्चुअली फैमिली से जब सपोर्ट मिलता है तो हम लोग हेल्थ की भी, हम लोग की कितनी भी प्रॉब्लम रहे, हम लोग फिर भी ओके रहेंगे। बट क्या होता है कि रामानुजन की वाइफ भी उनको लेटर लिखना बंद कर देती हैं, मदर भी लेटर लिखना बंद कर देती है, कोई लेटर नहीं लिखता है। उससे वो बहुत हर्ट फील होते हैं, उनको लगता है सब उनको भूल गए हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि मुझे इंडिया जाना चाहिए। और इंडिया जब वो पहुँचते हैं तभी आई थिंक इन 1-2 ईयर ही पास्ड, क्योंकि इंडिया जाने के बाद भी उनके हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। एंड दैट वाज टाइम कि जब टीवी ट्यूबरक्लोसिस का कोई इलाज भी नहीं हुआ करता था। नाउ इंडिया इज डेवलप्ड वेरी मच, नाउ वी हैव द आइडिया हाउ टू मीन्स ट्रीट टू अ ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट, बट दैट टाइम वाज नॉट। आई रियली फील सॉरी दैट फॉर दैट टाइम, बट व्हाट कैन वी डू नाउ? And another popular story is about Ramanujan's lost notebooks. What about that actually? Yeah, Ramanujan lost notebook. उससे I'll tell you this. First of all, I'd like to tell you, जब रामानुजन की डेथ होने वाली थी तो उसके आई थिंक 4 दिन पहले ही वो मैथ्स करना छोड़ दिए थे, क्योंकि तब वो एकदम बेड पे पड़ गए थे। बट अभी 4 दिन पहले रामानुजन एक्चुअली अब वो उनका हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करता था, वो फुल्ली मतलब बेड पे, अब उनको डॉक्टर बोल दिया था रेस्ट करने के लिए। तो रामानुजन अब ऐसा नहीं है कि हाथ पैर बंद हो गया, लेकिन उनका माइंड तो वर्क कर रहा है। फिर वो मैथ्स के बारे में सोचा करते थे एंड अचानक वो अपनी वाइफ से बोलते हैं गिव मी माई स्लेट। वाइफ उनको स्लेट देती है एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग मैनी फॉर्मूलाज, और वो करीब 600 फॉर्मूला लिख लेते हैं। नाउ आई टेल यू, मतलब कि 100 साल रामानुजन को पास किए हुए 100 साल हो चुके हैं, और वो जो 600 फॉर्मूला लिखे थे स्टिल अभी तक मैथमेटिशियंस फाइंड करें कि इसका मतलब क्या होगा। मतलब अभी तक किसी को मतलब ही नहीं पता चला। मतलब वो बेड पे लेटे हुए फॉर्मूलाज के बारे में सोच रहे, उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया। अब 100 साल भी बीत चुका है और किसी को उसका मतलब नहीं पता चला कि वो एक्चुअल में लिखे क्या है। उसमें से एक बहुत फेमस है मॉक थीटा फंक्शन। मॉक थीटा फंक्शन अब स्टार्टिंग से ही रामानुजन अपने मतलब एज से आगे चलते हैं अपने, लाइक मॉक थीटा फंक्शन अभी कुछ साल पहले यूज़ हुआ है और अभी भी यूज़ हो रहा है कैंसर के पेशेंट को, क्योंकि जब हमारे बॉडी में कैंसर हो जाता है तो वो कैसे बढ़ रहा है
एक पेशेंट को कितनी दवा देनी चाहिए, ये भी इसमें भी मॉक थीटा फंक्शन यूज होता है। मतलब कि वो अपने एज से कितना आगे थे कि वो पहले डिस्कवर कर दिए मॉक थीटा फंक्शन, और अब हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। उनके लॉस्ट नोटबुक के बारे में बात करें तो उनके फ्रेंड मतलब जाते हैं कैम्ब्रिज, तो उनको एक नोटबुक मिलती है, और एक नहीं बहुत सारी रामानुजन की नोटबुक रहती। पहले तो वो जो बचपन में छुपा के रखा करते थे, अपने छत पे उनका कुछ बना था उस पे छुपा के रखा करते, वो भी उनकी मदर भी देती है। मद्रास यूनिवर्सिटी का मतलब रिक्वेस्ट करते हैं वो सब नोटबुक देने के लिए, उनकी मदर मतलब सारे नोटबुक देती हैं उनको। और अभी भी रिसर्च चल रहा है कि रामानुजन ये सब क्या लिखे। आई थिंक हमारे अपकमिंग जनरेशन में शायद मैथमेटिशियंस को मिल जाए कि रामानुजन कहना क्या चाहते थे, वो फॉर्मूलाज वो है क्या। Okay, so that was the entire story about Srinivasa Ramanujan. This बहुत ही ग्रेट पर्सन है, एंड आई पर्सनली मैथमेटिक्स वो मेरे फेवरेट मैथमेटिशियन है। इनफैक्ट आई एम नॉट वेरी मच टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम तो फिजिक्स ही पढ़ता हूँ, लेकिन अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, आई पर्सनली कंसिडर कि श्रीनिवास रामानुजन अयंगर हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन हु एवर लिव्ड, जो कि हमारे अर्थ ने, जो कि हमारी वर्ल्ड ने, दुनिया ने एवर देखा है, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन। एंड इवन G.H. हार्डी इन वन मीटिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी ही आस्क्ड दैट हु आर वी टू क्वेश्चन रामानुजन, सो दैट कैन से कि हम रामानुजन को कितना ग्रेट कंसिडर कर सकते हैं। एंड अबाउट हिज लॉस्ट नोटबुक्स अगेन, दैट इज़ कि अभी तक मैथमेटिशियन समझ नहीं पाए हैं कि वॉट रामानुजन एवर मीन्ड टू से, कि लॉस्ट नोटबुक्स में वो जो फॉर्मूला उन्होंने लिखा है उनकी कंप्लीट मीनिंग तो नहीं डिस्कवर हो पाई है। But in fact, hope if God wishes to, soon the mathematicians maybe will be able to know what's the meaning behind all that. And that was just all for today. And thanks to you always.